We are going to continue this lecture of the Stone Ages as we studied the Paleolithic age and a little about the Mesolithic age. So as we understood, the Mesolithic age has the speciality of the use of microliths, and it has been also termed as the Epipaleolithic age. A very special feature of the Mesolithic age has been its art, the Mesolithic art. Mesolithic art में रॉक पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड दे हैव बीन नोटिस्ड बाय एन असिस्टेंट सर्वेयर ACL Carliffy. He was an assistant surveyor at that time, and he first of all noticed the rock paintings at Kaimur Hills, मिर्ज़ापुर यूपी. मिर्ज़ापुर यूपी के कैमूर हिल्स में सबसे पहले इन्होंने रॉक पेंटिंग्स को नोटिस किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1867 to 1868. Then there were other sites at different parts of found at different parts of India where the Mesolithic art has been noticed. And one of those sites, one of those sites, there is a magnificent site where rock art has been notified, and it is the Bhimbekta rocks. Bhimbekta rocks in Madhya Pradesh. And it has been noticed in 1957 by an archaeologist V.S. Vakankar. V.S. वाकनकार जो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले बिम्बेक्ता रॉक्स को नोटिफाई किया. ये बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में जी यहाँ का जो रॉक आर्ट है. और जो ये बिम्बेक्ता रॉक्स हैं, देयर आर अबाउट 642 रॉक शेल्टर्स देयर, और जिसमें से 400 जो है 400 में पेंटिंग्स पाई जाती हैं. Now we will briefly have a look about this special site of rock art at during the Mesolithic period. As I told you, there were 642 rock shelters, and among which 400 have been notified as having paintings. Among the paintings which were afterwards studied by V.S. Vakankar and other archaeologists, they have noticed that there are almost or mostly 16 colors have been used among these in these paintings, with white and red used the most often. And these paintings depict mostly animal scenes, and among the animal species, almost 29 species have been notified as having been dominant scenes on these Bhimbekta rock shelters. So this was all about the Mesolithic period, which had a speciality of certain art features which was depicted in the rock shelters, caves, etc. There have been other places where this Mesolithic art have been notified, but the important ones were discussed here as Bhimbekta rocks in Madhya Pradesh and Kaimur Hills in Mirzapur, UP. Now we'll see the Neolithic age. Neolithic age, also known as the New Stone Age, it comes in the Holocene era. As I told you, Holocene is one of the epochs of the Cenozoic era, and during this Holocene era, the Neolithic age comes to us, or the Neolithic revolution exposes itself. Neolithic revolution की कुछ ख़ास बातें हैं, कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको जिसकी वजह से इसका नाम न्यूलिथिक रेवोल्यूशन रखा गया है. इसके लिए एक टर्म कॉइन की गई है बाय वी गोल्डन चाइल्ड. वी गोल्डन चाइल्ड ने इस न्यूलिथिक एज को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया. क्यों ऐसा इसका नाम पड़ा, एक रेवोल्यूशन का नाम दिया गया? क्योंकि उसमें कुछ खासियत थी जो इससे पहले वाली एज में नहीं पाई जाती हैं, जिस एज के बाद एक हिसाब से वर्ल्ड जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक सेटलर्ड लाइफ स्टार्ट हो जाती है.
तो उन फीचर्स को हम देखेंगे। सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर है इस एज का, दैट इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मीन्स इस एज में प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया। इससे पहले हालांकि मेसोलिथिक एज में कुछ कुछ जगहों पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का जो है वो उसका प्रूफ मिलता है हमें, लेकिन जो प्रॉपर वे में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स स्टार्ट हुआ है तो वो स्टार्ट हुआ है इसी न्यूलिथिक एज में है, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ है, इसमें पॉटरी का इन्वेंशन भी हो जाता है, बर्तन वगैरह जब बनाना स्टार्ट किए गए हैं। एंड एक और चीज़ इसमें है डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स, यानी जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे जब डिवाइड किया गया लेबर को, मींस औरतों का काम ये है, मर्दों का काम ये है, जब ये डिसाइड किया गया, इट वाज इन ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। सेडेंट्री लिविंग स्टार्ट हुई उस टाइम पे, मींस जैसे मैंने कहा सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई। जो लोग इससे पहले हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे तो उन्होंने अब क्या किया, जब उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, जब उन्होंने कल्टीवेशन स्टार्ट की, जब उन्होंने एनिमल रेयरिंग स्टार्ट की, तो दे स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ, ए सेडेंट्री लिविंग, separate from the forests, the mountains, although it was there but it was not of that level. So these have been the special characteristics of the Neolithic age, that is the one of the reasons why Golden Child coined the term Neolithic revolution. न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में, न्यूलिथिक एज में एक तो ये स्पेशल बात है कि उस टाइम पे एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, प्लांट डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन उस टाइम पे स्टोन टूल्स का यूज़ जो है वो कंटिन्यू होता था, क्योंकि ये स्टोन एज के साथ आ जाता है, तो स्टोन टूल्स यूज़ होते थे उस टाइम पे। तो स्टोन टूल्स जो यूज़ होते थे उनको सेल्ट्स कहा जाता था। सेल्ट्स जो थे, सेल्ट्स दे वर ग्राउंड एंड पॉलिश्ड हैंड एक्सेस, यानी वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड हैंड एक्सेस थे, मीन्स वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे, उनकी जो स्पीड थी, जो फंक्शनिंग थी वो बहुत ज़्यादा बेटर थी एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर वर्जन्स एज द हैंड एक्सेस यूज्ड इन द लोअर पैलियोलिथिक एज। तो उनसे की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मूथ फंक्शनिंग ये सेल्ट्स करते थे, तो ये इनकी स्पेशलिटी थी। तो अगर हम इस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा वापस हम इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो जैसे हमने देखा स्टोन एजेस, हमने देखा कि इसका कंसेप्ट कहाँ से आया है, और डिफरेंट स्टोन एजेस, पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक एंड मेसोलिथिक। तो मैंने पहले ही आपको कहा पैलियोलिथिक एज में हंटिंग गैदरिंग जो है वो मेनली होती थी, मेनली नहीं, वो वन एंड ओनली चीज़ थी उस टाइम पे जो प्रैक्टिस की जाती थी, हंटिंग एंड गैदरिंग। जैसे मेसोलिथिक पीरियड आ जाता है तो स्टोन टूल्स में चेंज आ जाती है, ठीक है ना, स्टोन टूल्स ज़्यादा स्मॉलर हो जाते हैं, जिनको हम माइक्रोलिथस बोलते हैं। एंड इस टाइम पे किसी किसी जगह पे फिशिंग देखी जाती है और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी देखी जाती है। और लास्ट में जब हमने देखा न्यूलिथिक एज के बारे में, तो न्यूलिथिक एज में हमें फूड प्रोडक्शन देखा, यानी कल्टीवेशन होती है प्लांट्स की, और प्लांट डोमेस्टिकेशन या एनिमल डोमेस्टिकेशन भी इस पीरियड में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल साइट्स हैं जहाँ पे हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलता है इन टूल्स का, पॉटरी का, कल्टीवेशन का। तो उसके लिए अलग अलग साइट्स हमारे पास हैं। तो अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मैं आपके लिए वो प्रिपेयर कर सकती हूं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, एक साइट है पैलियोलिथिक साइट, दैट इज़ अतिरम पक्कम, ठीक है। अतिरम पक्कम जो है ये बहुत फेमस साइट है पैलियो